പാർലമെന്റിൽ ബജറ്റിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ചേർന്ന സഭ അവസാനിച്ചപ്പോൾ വലിയ സംഭവബഹുലമായ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പാർലമെന്റ് സഭ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. സ്പീക്കർക്ക് മേലുള്ള അവിശ്വാസ പ്രമേയം നൽകുവാൻ പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചതും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് BJP MP നിഷികാന്ത് ദുബെ അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസ് നൽകിയതും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ബഹളമുണ്ടാക്കിയതും പാർലമെന്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് 8 MPമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതുമൊക്കെ ഈ കാലയളവിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് എടുത്തു പറയാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അത് സഭയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നിർമ്മല സീതാരാമനും തമ്മിലുള്ള വാക്പോരായിരുന്നു. അമേരിക്കയുമായുള്ള ഇടക്കാല വ്യാപാര കരാറിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ദേശീയ താൽപര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തതായിട്ട് ആരോപിച്ച കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ ലോക്സഭയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പോരാട്ട പ്രസംഗത്തിന് മറുപടിയുമായി നിർമ്മല സീതാരാമനും വന്നിരുന്നു. മോദി ഇന്ത്യയെ വിറ്റു എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശം. ഇന്ത്യയുടെ താരിഫ് നിരക്കുകൾ 3% നിന്നും 18% വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അമേരിക്കയുടേത് 16% നിന്നും 0% കുറഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. US-ഉമായുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഡാറ്റയുടെ പ്രാധാന്യം വിസ്മരിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അതേസമയം കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന ആരോപണം ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. 16ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശുപാർശകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. മെഗാ ടെക്സ്റ്റൈൽ പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാൻ കേന്ദ്രം തയ്യാറാണെന്നും ബയോഫാർമ മേഖലയ്ക്ക് ബജറ്റിൽ പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു. എതിരാളി കൂടുതൽ കരുത്തരാണെങ്കിൽ വാക്കുകൾക്ക് മൂർച്ചയേറും. അത് തന്നെയാണ് നിർമ്മലയുടെ കാര്യത്തിലും സഭയിൽ കണ്ടത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി കരുത്തനായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പാർലമെന്റിൽ നടന്ന ആ ആവേശപ്പോര് അവിടെ അരങ്ങേറാനുള്ള കാരണം. നമുക്ക് ആ പോരാട്ടം കൂടി കാണാം. कांग्रेस के लोग इसको सुनने में क्षमता रखना चाहिए. They should have the strength to listen to this. भारत को सेल कर रहे, भारत फार्मर को सेल कर रहे. मोदी जी सरेंडर कर दिया. मोदी जी किसी देश का हित का विषय में सामने खड़े होकर के बात करेंगे, देश के हित में काम करेंगे. मगर देश को बेचने वाले कौन है? Who has sold? I tell you who has sold. 2013 में वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए. वो 2 ही विषय था. ट्रेड फैसिलिटेशन एक था, दूसरा विषय पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स था. पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भारत के हित में कुछ ना करते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर साइन करके आ गए थे. इसका मतलब था 2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है और हम रेशन के दुकान से गरीब लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते हैं. मतलब रेशन का कोई भी चीज जा नहीं सकते. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं. हमारे किसान से MSP दे करके कोई प्रोक्योरमेंट कर नहीं सकते थे. अगर मोदी जी 2014 में आकर के WTO के ऊपर हार पकारा, we fought for it and got peace clause so that we can think of the country also, man. This country 2017 से PDS डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं सकते थे, गरीब को रेशन दे नहीं सकते थे. देश को, गरीब को, किसान को बेचने वाले ये लोग हैं. ये सरेंडर करके आए हैं. WTO में जाकर के पूरे सरेंडर करके आए हैं ये लोग. और भारत देश का हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे LOP, उनको कोई नैतिक अधिकार बनता नहीं है. 2017 के अंदर पीस क्लॉज WTO में लेकर आए मोदी जी. इसके वजह से कोविड के समय हम सब लोग
को रेशन दे पाए और किसान से आज भी प्रोक्योरमेंट हो रही है। नहीं तो कांग्रेस के साथ चलते हुए हमारे देश का किसान सड़क पर आ जाते। ये सेल करने वाले लोग हैं, ये भारत का किसान को बेचने वाले लोग हैं, ये हमारे गरीब को बेचने वाले लोग हैं। मैडम, लास्ट में एक और विषय, नहीं, पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने दे दिया और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने के समय आप पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने क्यों दिया? और ये कहकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमें सजेशंस दे रहे हैं नेगोशिएशन कैसे करना है। किसान को, गरीब को सेल कर दिया 2013 में और उससे पहले 2009 में शर्म एल शेख में जाकर के भारत और पाकिस्तान को जोड़कर हाइफेनेट कर और टेररिज्म से ताल्लुक नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ समझौता करेंगे, बात भी करेंगे करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कांग्रेस वाले पाकिस्तान से इंडिया को जोड़ करके वी विल टॉक विद पाकिस्तान और टेररिज्म से लिंक नहीं है कहने वाले ये कांग्रेस वाले आज आकर के हमें एडवाइस दे रहे नेगोशिएशन कैसे करना है। सेल करने वाले आप लोग हैं, किसान को भी, गरीब को भी, इस देश को भी पाकिस्तान से जोड़ने वाले आप लोग हैं। चिल्ला चिल्ला के मेरे आवाज को बंद नहीं कर सकते, ये पूरे देश सुनेगा, ये पूरे देश सुनेगा। आप आकर के इधर हमें एडवाइस दे रही हो। यस, किरण रिजिजू ने सही कहा, भारत को बेचने वाले कोई माय की लाडला अभी तक जन्म नहीं हुआ, मोदी जी कभी नहीं करेंगे। थैंक यू मैडम। And talk this type of nonsense. Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? No. We are patiently listening to Honorable Leader of Opposition. We are patiently listening. But the words. So I'm not yielding, sir. No, but you are saying shameful. Parliamentary affairs. You are saying nonsense. Nonsense. So how can you? Okay, I won't When go the down that finance line. minister replies in the evening, the leader of opposition should listen to the reply of the honorable finance minister. My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. नॉनसेंस जो नॉनसेंस आपने यूज किया वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। नॉनसेंस इज नॉट एप्रोप्रिएट। I did not use nonsense, sir. You have used. Okay, sir, I won't use nonsense. हाँ तो प्लीज। Sir, ashamed is not an abuse. नहीं। There's nothing. In saying, "Are you not ashamed?" There is no abuse. No, ashamed you can use. I am just stating. Whatever you have, Okay, sir, let me speak. forgotten, I think so. I am saying, Speaker sir, I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? How you can? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? You will get. But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker sir, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों बोल I want to understand. I will not allow you. नहीं, आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं, देखिए आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया।
Okay, Speaker sir, वो Epstein की बात नहीं कर रहा. is not related with the budget. Okay, sir, I won't say Epstein. I will not allow. That will not I'm be not part saying of the- Epstein. Okay, चलिए. Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, jujitsu में grip दिखती है, राजनीति में grip choke नहीं दिखता. At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is a central part of the budget. वो भी इस हाउस के Why, sir? कोई सदस्य नहीं जिसपे आप आरोप लगा रहे हैं, कैसे सवाल देंगे? वो किसी पे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन आप लिख करके दे सकते हैं. अगर आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, Speaker sir, आप नियम 352, 5 और 354 को भी जानते हैं कि आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप एक मतलब हायर अथॉरिटी को या प्राइम मिनिस्टर को या सरकार को नहीं सर, उनके साथ जोड़ ओके, तो बोलने तो दीजिए. आप नियम जानिए. ओके. आप नियम सर, जानिए. अदानी जी जो है, आप अपने बजट तक सीमित रहिए. देखिए, आप जो भी चाहे अपनी बात कहें, आप अपनी बजट पे बात कहें. बजट मैं कर रहा हूं सर. बजट पे आलोचना सर, आप मुझे करें. करने दीजिए. आपको बिल्कुल लगा. आप बैठिए बेनी बहन जी, बेनी बहन जी, आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, लेकिन जब किसी का नाम लेकर के और किसी हायर अथॉरिटी करें तो आप ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार को. Sir, Mr. Adani is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं. आप इस तरीके से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत सारे विषय बातें की. अभी सुनना चाहिए. वो थोड़े जुजुत्सु मार्शल आर्ट के लैंग्वेज बताए. हाँ, ग्रिप, कंट्रोल, ग्रिप बहुत बताए ग्रिप के ऊपर. और ये भी बताए, इतने भी बताए कि चेयर में बैठे हुए हमारे जगदम्बिका पाल जी को हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप आखिर हमारी पार्टी वाला है वगैरह, वो भी बताए. ठीक है जी. बिट्टू को गद्दार का. बट उन्हीं के पार्टी से बाहर आए हुए बिट्टू को ट्रेटर बताया. ये एक चेयर में बैठे हुए दोस्त है, हमारे बिट्टू ट्रेटर हो गए. सो ऐसे कहने वाले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत सारे विषय बताए. उनको मैं जरूर एक पॉइंट पे जरूर आंसर करना चाहता हूं. मैं वो सही एक विषय उठाए. Please listen, I'm talking about LOP. Listen, you will be keen to know. नहीं, Suresh, you're not wanting to listen on LOP? Kodi Kundir Suresh, माननीय your मंत्री LOP जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री प्लीज. AI और डेटा के ऊपर बहुत चिंता व्यक्त की कि भारत के डेटा विदेश में चली जा रहे हैं. सही नहीं है, क्योंकि हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं डेटा सेंटर्स को, जिससे भारत देश में डेटा रहे और भारत के युवा को जॉब्स मिले. उसके लिए हम कर रहे हैं डेटा सेंटर के लिए प्रावधान, और उसको बिना समझे ये बोल रहे डेटा आप विदेश का कंपनी को दे रही हो. हमारे यहाँ क्या होगा? हमारे यहाँ इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इसीलिए कि डेटा सेंटर भारत में रहे, डेटा भारत में रहे और डेटा हमारे युवाओं को मैनेज करने के लिए हमारे हाथ में रहे. ये एक विषय है. दूसरा, इंडिया AI मिशन 1000 करोड़ का एलोकेशन इस बजट के इस विषय के लिए एलोकेट किए हैं. और हमारे इंडियन कस्टमर्स का सर्विस अच्छा हो
क्लाउड विदेश से आने में हमारे डेटा हमारे साथ हमारे कस्टमर्स के लिए सर्विस में आना चाहिए, इसलिए हमने वो एक्सटेंड किए। बट दैट ही इज नॉट, ही डिडंट नोटिस, ही डिडंट रीड इट, मगर एलिगेशन डाल दिए। सेकंड, फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, ऐसे बयान कर रहे हैं। अबोध बालक पर सुनो। ये विषय हमारे सांसदगण और उनके सांसदगण सब सुनना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए। Go sit and hear, ma'am, please. Ma'am, I'm talking to her, okay? I'm talking. I'm replying Rahul Gandhi. Go sit and hear. माननीय मंत्री जी प्लीज। अरे केसी वेणुगोपाल जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए आप चिल्लाते रहते हो, अभी जवाब दे रही हो, उनके लोगों को सुनने के लिए बोलो। अबोध बालक, अरे अबोध बालक को बोलो। मैडम, फूड सिक्योरिटी, वैल्यू एडिशन के ऊपर बात कर रहे थे। आई वॉन्ट टू टेल हिम, टोटल फूड सब्सिडी के लिए 2.27 लाख करोड़ बजट में एलोकेशन हुआ है फूड सिक्योरिटी के लिए, और 80 करोड़ लोगों को अभी भी हम जारी रख रहे हैं फ्री फूड। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बजट में 4064 करोड़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के विषय में स्कीम के लिए पैसा 4000 करोड़ से ज्यादा एलोकेट हुआ। फिर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, उसके लिए 350 करोड़ अनाउंस किया है, वो जो कोकोनट वगैरह मैंने एक्सपेंड किया। फूड इन्फ्लेशन सबसे लोअर रेट में है, जबकि यूपीए के समय फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, 10%, 11%, अभी तो वो नीचे आकर के 2% से कम है फूड इन्फ्लेशन। फिर वो बहुत बड़ा बयान दिया, जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी, वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस, इन सब के ऊपर बोले कि इतने सारे चैलेंजेस है, बजट ब्लड, ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बजट उसको एक्नॉलेज करता है, मगर बजट में इतने सारे हैं उसको पढ़ा नहीं है। क्या क्या है मैडम? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो 50,000 करोड़, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड 50,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है। अनएंटिसिपेटेड, अनएक्सपेक्टेड अगर चैलेंज होता है उस पैसा को उपयोग कर सकते। ये 25-26 में ही अनाउंस हो चुका है, वो पैसा है, उनको उसका ध्यान नहीं है। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी फंड 9,800 करोड़ टू काउंटर वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस हमने अलॉट कर चुके हैं, वो उसको भी उनका जानकारी नहीं है, पढ़ा नहीं है। अबोध बालक। एनर्जी सिक्योरिटी, रेयर अर्थ के लिए भारत तैयार रहना चाहिए, माइक्रोचिप्स हम बनाना चाहिए, इसके ऊपर इतना चिंता व्यक्त करने वाला लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये भी पढ़ा नहीं है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमने क्रिटिकल टू insulate India from weaponization of energy matters. The budget pushes for autonomy in critical minerals. Customs duty का exemption हुआ, न्यूक्लियर पावर के लिए 2,500 करोड़ अलॉट हुआ, एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ अलॉट हुआ। बजट को पढ़ा नहीं है, आ गए हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करने के लिए। फिर बजट में ये भी कहा कि SEZ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंपैक्ट हुआ है ये टैरिफ वगैरह के कारण,
उनको डोमेस्टिक एरिया में सेल करने के लिए हमने प्रावधान किया, कस्टम्स ड्यूटी को छूट दिया, सो दैट वो यूनिट्स बच पाएंगे। फिर कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने के लिए, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ले आने के लिए कस्टम्स में इतने प्रावधान किए। फिर सपोर्ट करने के लिए एमएसएमई और आर्टिसान्स को 10 लाख वैल्यू कैप ऑन कोरियर एक्सपोर्ट, कोरियर के द्वारा जो एक्सपोर्ट होता है उसको भी हमने कैप हटा दिया, जिससे हमारे छोटे छोटे उद्योग बाहर एक्सपोर्ट करने में सुविधा हो। फिर ये क्लियरेंस करने के लिए डिजिटल एक ही प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी एक ही विंडो के द्वारा हो सकते हैं। ये कुछ नहीं पड़ा, आ गए हमें लेक्चर करने के लिए, हमारे देश का इनसिक्योरिटी, ये सब है बजट में, पड़ा कि नहीं है? फिर